Okay, in order to extract the required information from the huge database or from the internet, what we need some way which is called as a search engine. Search engine जैसे कोई भी आप database open करते हो, आप Google open करते हो, तो आपको एक search engine मिलता है, एक box मिलता है जिसमें आप जो भी information आप search कर रहे हो उसको आप text करते हो, तो फिर वो सर्च इंजन क्या करता है, जो गूगल का जो डेटाबेस है वहां से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको डिस्प्ले करता है. ठीक है, दैट इज द सर्च इंजन. सर्च इंजन क्या है? It is a software. It is a software system that are designed to carry out the web searches. Okay. Next is the Wikipedia. Wikipedia क्या है? It is an online encyclopedia where several articles are present, and it is open source. Open source means free और नॉन चार्जेबल. आपको कोई भी टॉपिक के बारे में अगर कोई भी आर्टिकल पढ़ना है, अगर आप सर्च करते हो गूगल में, तो सबसे पहला पेज जो ओपन होता है वो विकीपीडिया का होता है. ठीक है, तो विकीपीडिया क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया where several articles are present, and it is open source. Open source means free of charge. Okay, so let's start with search engine. What is search engine? The purpose of search engine is to extract the requested information from the huge database of resources available on the internet. आप कोई भी database open करो, जैसे न्यूक्लियोटाइड database open करोगे, सीक्वेंस डेटाबेस ओपन करोगे, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ह्यूज होता है. अब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको उतने ह्यूज डेटाबेस से कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना? तो हर डेटाबेस में ऊपर एक सर्च बॉक्स होता है जिसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, जहां पर आप अपने जो भी आपको जिस भी बारे में आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो आप टाइप करते हो, और फिर वहां से वो सर्च इंजन जो है वो ह्यूज डेटाबेस में उसको सर्च करता है और आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को वो डिस्प्ले करता है. Okay. Search engine becomes an important day-to-day tool for finding the required information without knowing where exactly it is stored. Internet usage has been tremendously increased in the recent days with easy-to-use search engine like Google, Bing, Yahoo. ये सब क्या है? आपका सर्च इंजन है. ओके, द सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट आर डिजाइन्ड टू कैरी आउट द वेब सर्चेस. They search the World Wide Web in a systematic manner or the particular information specified in the textual web search query. है ना? आप जो वेब सर्च क्वेरी बॉक्स है उसमें जो भी टेक्स्ट करते हो उसके हिसाब से वो एक एल्गोरिदम अंदर फिट होता है. हर सर्च इंजन के अंदर एक एल्गोरिदम फिक्स होता है, उस हिसाब से फिर वो आपको वेब रिजल्ट पेज डिस्प्ले करता है. ठीक है, द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रिफर्ड टू एज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. The information may be a mix of link to web pages, image, video, article, research paper or other type of files. जब अपन सर्च करके जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप जो भी टाइप करते हो फिर सर्च करते हो, तो उसके बाद जो रिजल्ट आपका जो पेज ओपन होता है उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज. ओके, उसमें आपको मिक्स इंफॉर्मेशन मिलती है. आपको वहाँ पे वेब पेजेस भी मिलेंगे, इमेजेस भी मिलती है, वीडियोस भी मिलता है, आर्टिकल्स भी मिलते हैं. ठीक है, then there are different types of search engine to get the information we are looking for. बहुत सारे search engines होते हैं like Google, Yahoo, Bing, Ask, Demos. There are various types of search engine present on the internet. The search engine are classified into the following categories based on how it works. So first is the crawler based search engine, human powered directories, hybrid search engine and meta search engine. These are the four types of search engine classified on the basis of how they work. Now, why search engines are important? The search engine are a part of daily life for two types of people. First are the user who search and get their information, and second are the site owner who try to optimize their website for getting top rank in the search result. Okay, दो टाइप के पीपल्स के लिए सर्च इंजन इंपॉर्टेंट है. पहला यूजर जो क्या करता है, वेब में सर्च करता है और इंफॉर्मेशन निकालता है, और सेकंड क्या है, आपके साइट ओनर्स जिसकी साइट हम यूज करते टू गेट द इंफॉर्मेशन. साइट ओनर्स क्या करते, दे ट्राई टू ऑप्टिमाइज देयर वेबसाइट फॉर गेटिंग टॉप रैंक इन द रिजल्ट सर्च रिजल्ट्स. वो हमेशा अपने वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं ताकि अगर किसी ने उनके साइट के अकॉर्डिंग अगर सर्च करें तो उनको टॉप रिजल्ट मिले, टॉप रैंक मिले. जो सर्च रिजल्ट पेज गूगल आपका डिस्प्ले करता है उसके ऊपर की
रैंक्स मिले, टॉप रैंक्स मिले, क्योंकि जो जनरली यूजर्स होते हैं वो टॉप 10 या 15 पेजेस पढ़ते, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो तो रैंक आपका कम होगा तो उतने कम व्यूज आएंगे। टॉप की जो साइट्स होती है उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, तो इसलिए साइट ओनर जो है वो हमेशा अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है फॉर गेटिंग अ टॉप रैंक इन द सर्च रिजल्ट पेज। Okay, the search engine follows the guideline and they have their own algorithm to decide the ranking of website in the search results. हर सर्च इंजन की अपनी गाइडलाइन होती है, अपना एल्गोरिदम होता है, उस बेसिस पे वो साइट्स को रैंक देते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स को रैंक देते हैं। ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट फॉर गूगल और अदर सर्च इंजन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट ओनर फॉर रीचिंग आउट द लार्ज ऑडियंस। जो वेबसाइट्स ओनर होते हैं वो हमेशा अपने वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं, ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, ताकि उनको टॉप का रैंक मिले और वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक वो रीच हो सके। The visitors can generate revenue for the site owner either through advertisement displayed on the site or through purchasing the product. Okay? जो साइट ओनर्स है उनको मनी कैसे जनरेट होता है, जब विजिटर उनके साइट में जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देखते हैं या फिर बाय परचेसिंग द प्रोडक्ट, है ना। जैसे अमेजोन है, उसमें जो आप अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वेबसाइट ओनर को वहां से पैसे जनरेट होते हैं, प्लस through the advertisement display on the site. Okay, so where the search engines are important, they are important for the two types of people, user and the site owner. Site owner always try to optimize their website so that they get the top rank in the search result page. They try to optimize their website for reaching out the large audience. The visitor generates revenue for the site owner through the advertisement display on the site or by purchasing the product. नेक्स्ट इज हाउ द सर्च इंजन वर्क्स। तो यहाँ पर मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं, दिस इज फॉर द क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन। तो देर आर 4 बेसिक स्टेप every crawler based search engine follows before displaying any site in the research result. First is crawling, second is indexing, third is calculating the relevancy and fourth is retrieving the result. ठीक है, कोई भी साइट जो है आपका सर्च इंजन में कैसे ऐड होता है वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है। पहला स्टेप होता है क्रॉलिंग। ठीक है, क्रॉलिंग में क्या होता है, जो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है उसमें क्या रहता है, सॉफ्टवेयर लगा होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, पूरे टाइम जो वेब है, जो इंटरनेट है, उस पर क्रॉल करता रहता है। ओके, क्रॉल करता रहता है और देखता है कि कोई नया या कोई अपडेटेड पेज आया है क्या इंटरनेट पे। जो भी नया पेज या अपडेटेड पेज उसको दिखता है तो उसके यूआरएल को, उसके एड्रेस को वो अपने लिस्ट में डाल लेता है। ओके, दैट इज द क्रॉलिंग। फर्स्ट स्टेप इज द क्रॉलिंग। द सर्च इंजन searches the web with an automated program called crawler looking for the page that are new or updated. The search engine stores those page addresses in the big list to look at after. उसके एड्रेस को वो अपने पेज पे लिख के रख लेता है, अपने पेज पे स्टोर कर लेता है कि आगे उसको वो व्यू करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज द इंडेक्सिंग। Indexing is the next step after crawling, in which the search engine visits the pages that is learned about by crawling and try to analyze what each page is about. Okay, इंडेक्सिंग में क्या होता है, क्रॉलिंग के टाइम पे जो सर्च इंजन ने जो नया और अपडेटेड पेज का एड्रेस लेके रखा था, अब वो उस एड्रेस पे जाता है और उसको लर्न करता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है कि वो पेज पे क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, कैसे एनालाइज करेगा, थ्रू द कंटेंट, इमेज, वीडियो फाइल्स, या फिर जो कीवर्ड्स होते हैं। कोई भी अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो कीवर्ड्स डले होते हैं जो आपको अगर आपने कोई भी आर्टिकल का कीवर्ड पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि वो आर्टिकल में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड के थ्रू सर्च इंजन जो है वो एनालाइज करता है कि वो पेज में क्या इंफॉर्मेशन है एंड अकॉर्डिंगली फिर उसको वो अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। ठीक है, द सर्च इंजन एनालाइज द कंटेंट, इमेज एंड वीडियो फाइल्स इन द पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेज इज अबाउट। दिस इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर्ड इन द सर्च इंजन डेटाबेस। अगर उसको समझ में आ जाता है कि वो पेज में क्या इंफॉर्मेशन है तो फिर वो सर्च इंजन को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। Sometimes when the crawler does not understand the meaning of any page,
that site may rank lower on the search result. Here it required to optimize that page for the search engine crawler to make sure the content is easily understandable. Once the crawler pick up the correct keyword, that page will be assigned to those keyword and rank high on the search result. कई बार क्या होता है, अगर आपने प्रॉपरली वो आर्टिकल नहीं लिखा है, कीवर्ड्स इमेजेस नहीं दिए हैं, तो क्रॉलर जो है आपके पेज को समझ नहीं पाएगा कि उस पेज में क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो कभी भी आपके सर्च रिजल्ट पेज में आपका पेज डिस्प्ले नहीं करेगा या बहुत ही लोअर रैंक देगा, जो जनरली विजिटर व्यू नहीं करते। ठीक है, इन दैट केस व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको वो पेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि जो सर्च इंजन क्रॉलर है वो आपके पेपर को, आपके आर्टिकल को, कंटेंट को वो समझ पाए। वंस द क्रॉलर पिक अप द करेक्ट कीवर्ड, एक बार अगर क्रॉलर ने आपके पेपर को समझ लिया, अगर उसको सही कीवर्ड्स मिल गए, then the page will be assigned to those keyword and rank high on the result, है ना। अगर वो समझ गए तब फिर अगर आपके आर्टिकल से रिलेटेड कोई यूजर अगर सर्च करता है तो फिर आपका रिजल्ट, आपका पेज जो है वो सर्च रिजल्ट पेज में शो होगा, मतलब इतना हायर रैंक, मतलब टॉप में आएगा। ठीक है, तो दैट इज द इंडेक्सिंग। द फर्स्ट स्टेप इज द क्रॉलिंग, सेकेंड स्टेप इज द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, द क्रॉलर ट्राई टू एनालाइज व्हाट ईच पेज इज अबाउट। ओके, the third step is calculating the relevancy. Okay, अब एक डेटाबेस में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो सर्च इंजन उन आर्टिकल्स, मतलब आपके पेज को वो रैंक कैसे देता है, वो चीज होती है कैलकुलेटिंग द रेलिवेंसी। द थर्ड स्टेप इज कैलकुलेटिंग द रेलिवेंसी। The search engine compares the search string in the search request with the indexed page from the database. आप कोई भी चीज जो सर्च बॉक्स में डालते हो उसको फिर वो क्या करता है, डेटाबेस में देखता है कि कौन कौन से पेजेस आपके सर्च, आपने जो भी सर्च क्वेरी की है उससे रिलेटेड कौन कौन से पेजेस हैं। Since it is likely that more than one page contains the search string, the search engine start calculating the relevancy of each of the page in its index with a search string. Okay, अब क्योंकि एक से ज्यादा पेज आपके डेटाबेस में है जो भी सर्च हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, it started calculating the relevancy. There is various algorithm to calculate relevancy. Each of these algorithm have different relative weights for the common factor like keyword density, links और mega tags. ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं रेलिवेंसी कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि कीवर्ड के बेसिस पे, देन इमेजेस के बेसिस पे, लिंक के बेसिस पे। हर एक जो सर्च इंजन है उनका अपना एल्गोरिथम होता है, इसलिए अगर आप कोई चीज को गूगल में सर्च करो, वही सेम टेक्स्ट को अगर आप याहू में डालोगे तो आपको डिफरेंट सर्च रिजल्ट पेज मिलेगा, मतलब जो आपका रैंक होगा वो ऊपर नीचे रहेगा, एक जैसा, वही एक के बाद एक वही सेम लिस्ट आपको दोनों सर्च इंजन में नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों सर्च इंजन के अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं वो अलग अलग है, वो अलग तरीके से रैंक देते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई द डिफरेंट सर्च इंजन गिव्स डिफरेंट सर्च रिजल्ट पेज फॉर द सेम सर्च स्ट्रिंग। आपने जो चीज गूगल में डाली है वही चीज अगर आप याहू में डालोगे या बिंग में डालोगे या आस्क में डालोगे, डीमॉस में डालोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन में, तो आपको जो सर्च रिजल्ट पेजेस मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। It is a known fact that all the major search engine periodically change their algorithm. So if you want to keep your site at the top, you also need to update your page to the latest changes. जो major search engine है जैसे Google, Yahoo, वो अपना algorithm हमेशा बदलते रहते हैं for calculating the relevancy. So if you want to keep your site at the top, you also have to update your page to the latest changes. आपको हमेशा अपने पेज को अपडेट करना पड़ेगा, जब आप अपडेट करोगे तभी आपका पेज हमेशा सर्च रिजल्ट पेज में शो होगा। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप इज रिट्राइविंग द रिजल्ट। ठीक है, डिस्प्ले करना। द लास्ट स्टेप इन द सर्च इंजन एक्टिविटी इज रिट्राइविंग द रिजल्ट। Basically, it is simply displaying them in the browser in an order. The search engine sort the endless pages of search result in an order of most relevant to the least relevant side. Okay, जो लास्ट स्टेप क्या आपका डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। ओके, इसमें क्या होता है, जो सर्च इंजन जो है एंडलेस, आप अगर कोई भी चीज गूगल में डालोगे,
और आप स्क्रॉल करते जाओगे तो देयर इज एन एंडलेस पेजेस, आते ही जाएगा, आपको नए नए पेजेस नीचे 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 मिलते ही जाएंगे। तो जो सर्च इंजन है वो क्या करता है, कैसे सॉर्टिंग करके रखा है, मोस्ट रिलीवियंट टू द लीस्ट रिलीवियंट। ओके, आपने जो भी सर्च किया है उससे जो मोस्ट रिलीवियंट साइट्स है वो आपको टॉप में मिलेगी, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो वो आपका लिस्ट रिलीवियंट साइट की तरफ जाते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सर्च फॉर अ माइलेज फ्रॉम एस्परजिलस टेरेस, ठीक है, तो आपको जो टॉप के जो साइट्स जो आपके आर्टिकल्स आएंगे वो कौन से आएंगे, जिसमें आपका अमाइलिस भी है, एस्परजिलस टेरेस भी है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो कुछ आपको आर्टिकल्स कौन से मिलेंगे, आइदर दे कंटेन अमाइलिस और एस्परजिलस टेरेस, है ना। अमाइलिस के ऊपर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, एस्परजिलस नहीं रहेगा उसमें, कुछ आर्टिकल आपको एस्परजिलस टेरेस के मिलेंगे। तो ऐसे आप जैसे से नीचे आओगे तो आपका जो ऑर्डर है वो लिस्ट रिलीवियंट होता जाएगा, ठीक है। When the user search on the search engine tries to determine the highest quality result. The best result have many factors, including the things such as user location, language, device, and previous query. हमेशा जो सर्च इंजन है वो अपना बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी रिजल्ट डिस्प्ले करता है। जो आपका बेस्ट रिजल्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे यूजर का लोकेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, कौन सी डिवाइस पे वो सर्च कर रहा है, और उनकी प्रीवियस क्वेरी क्या रही है। तो उन सबको वो देखते हुए वो रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, लाइक इफ यू आर सर्चिंग फॉर द बाइसिकल रिपेयर शॉप would show the different answer to the user in Paris than the user in Hong Kong, है ना। अगर आपने बाइसिकल रिपेयर शॉप को अगर आप सर्च कर रहे हो तो पेरिस पे बैठा हुआ जो यूजर है उनको वो अलग रिजल्ट देगा हांगकांग को। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यूजर का लोकेशन देख रहा है, यूजर के लोकेशन के अकॉर्डिंग इट विल गिव द सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है। So these are the 4 steps how the search engine work, है ना। सर्च इंजन कैसे अपने साइट को, कोई भी साइट को अपने डेटाबेस में ऐड करता है, और हाउ इट show the result. Okay, so first step is scrolling, second is indexing, third is calculating the relevancy, and fourth is retrieving the result. Coming to the types of search engine. Search engine are classified into following categories based on how it works. First is the crawler-based search engine. Second is the human-powered directories. Third is the hybrid search engine, and fourth one is the meta search engine. See the crawler-based search engine जो भी हमने पढ़ा, जिसका मैंने अभी आप लोग को steps बताए। तो crawler-based search engine uses the automated software program to survey and categorize the web pages. The program used by the search engine to assess new web pages are called spider, crawler, robot, or bots. The crawler digs through the individual web pages, pull out the keyword, and analyze the information present on the web page. This is a seamless process, means continuous process है। crawler जो है पूरे टाइम वेब में क्रॉल करता रहता है, ठीक है। जो भी कोई नया पेज आया है, कोई भी अपडेटेड पेज है, उसको वो पिक कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडेक्सिंग जो कि नेक्स्ट स्टेप है, उसमें वो क्या करेगा, ट्राई टू एनालाइज व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन दैट पेज, है ना, एंड अकॉर्डिंगली दे ऐड दैट बैक पेज टू द सर्च इंजन डेटाबेस। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, ठीक है। सीमलेस प्रोसेस मींस कंटिन्यूअस प्रोसेस। The web page will then be added to the search engine database. When the user performs a search, the search engine will check its database of web pages for the keywords the user searched for and present a list of link results. The results are listed on the page by the order of which is closest to what the user want to find online, ठीक है। तो जब आपका यूजर सर्च करता है सर्च इंजन में, जो भी उसने टेक्स्ट डाला है उसके अकॉर्डिंग सर्च इंजन जो है वो अपने डेटाबेस में देखता है कि कौन सा पेपर, कौन सा पेजेस हैं, और उसको फिर वो आपको प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट कैसे करता है, इन द ऑर्डर विच इज क्लोजेस्ट टू व्हाट द यूजर वांट टू सर्च, है ना। जो यूजर सर्च कर रहा है उससे सबसे क्लोजेस्ट पेज जो रहेगा वो टॉप में रहेगा, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको जो
लिस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो crawler based search engine are constantly searching the internet for the new web pages and updating their database of information with this new and updated pages, ठीक है। constantly search कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई नया पेज आपका वेब में आता है वैसे ही उसका डेटाबेस, जो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन का डेटाबेस जो है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन यानी कि जैसे ही कोई नया पेज वेब में आएगा वो पेज जो है वो डेटाबेस में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन आर गूगल एंड आस्क जेविस। एडवांटेजेस ऑफ crawler based search engines are they contain a huge amount of pages, maintain a real time information by running an algorithm or web crawler familiarity. Most people who search the internet are familiar with Google, है ना। बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहते हैं आपके इन द crawler based search engine एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इट मेंटेन्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन। वही मतलब जैसे ही कोई नया पेज आपका वेब में आया या फिर कोई पेज आपका अपडेट होता है वो तुरंत ही आपका सर्च इंजन, क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन अपना डेटाबेस उसको अपडेट कर लेता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम इट्स जस्ट टू मच इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा पेज, अगर आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हो तो एंडलेस पेजेस आपके ओपन हो जाते हैं, तो कई बार आप एक्चुअली में जो सर्च कर रहे हो आप वो इंफॉर्मेशन तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा पेजेस अपने ओपन हो जाते हैं। It is easy to trick the crawler. The website have the hidden data that can be manipulated to make the page appear like it's something it's not. So the search result for the discards might actually take you to the unwanted site. कई बार क्या होता है, जो आपके गलत साइट्स, फेक साइट्स भी आ जाते हैं जो आपको अनवांटेड साइट में लेके चले जाते हैं, ठीक है। So this is the some of the disadvantages of crawler based search engine. Next is the directory. Directories are the human powered search engine. A website is submitted to the directory and must be approved for the inclusion by the editorial staff. The human editor will decide what category the site belongs to. They place the website within the specific category in the directory's database. The human editor comprehensively check the website and rank it based on the information they find using the predefined set of rules. Many directories charges fees for the inclusion, but the Open Directory project is popular free service. Some of the example is Yahoo Directory, Open Directory project like demos.com, Internet Public Libraries are the example of directories. Okay, the difference between the directory and crawler based search engine क्या है? Crawler based search engine जो है वो आपका fully automated program कॉल्ड एज क्रॉलर, वो जो है आपका वेब में क्रॉल करता है और साइट को ऐड करता है। लेकिन जो डायरेक्टरीज है दे आर द ह्यूमन पावर्ड सर्च इंजन, यानी कि यहाँ पे कोई ऑटोमेटेड प्रोग्राम नहीं डला हुआ है, ठीक है। कौन सा साइट आपका सर्च इंजन डेटाबेस में जाएगा, उसको क्या रैंक मिलेगा, वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये सारी चीजें क्या रहती है, ह्यूमन पावर्ड, मतलब एडिटोरियल स्टाफ जो है वो डिसाइड करता है। यहाँ पे कोई आपका ऑटोमेटेड प्रोग्राम फिट नहीं है सर्च इंजन के पीछे, ओके। मतलब जो वेबसाइट ओनर है अगर वो अपनी साइट उस डायरेक्टरी में ऐड करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अपने वेबसाइट को सबमिट करेगा। आफ्टर दैट द एडिटोरियल स्टाफ विल अप्रूव, है ना, उसको अप्रूव करेंगे और फिर वो अपने डायरेक्टरी में उसको ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिले होगा। वेबसाइट ओनर जो है वो अपने साइट को सबमिट करेगा, उसके बाद एडिटोरियल स्टाफ उसको अप्रूव करेगा एंड देन दैट पर्टिकुलर साइट विल बी एडेड टू द डायरेक्टरी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, आपका डायरेक्टरीज जो है वो पूरा ह्यूमन पावर्ड रहता है, जबकि आपका जो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है वहां पर क्या है, आपका सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर कर रही है, ठीक है। वहां पे एल्गोरिथम्स फिट है, आपका वो सॉफ्टवेयर साइट को ऐड करती है, रैंक करती है, सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। इन द डायरेक्टरी सारी चीजें जो है वो ह्यूमन पावर्ड है, ओके।
बहुत सी डायरेक्टरीज जो है दे चार्जेस फीस फॉर द इंक्लूजन, बट द ओपन डायरेक्टरीज आर द पॉपुलर फ्री सर्विसेज। The advantages क्या है इसके? each page is reviewed for relevance and content before being included. This means no more surprise fake sites. Less results sometimes means finding what the user need quicker. Okay, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टरीज में हर जो साइट है वो रिव्यू होने के बाद ऐड हुई है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई फेक साइट्स नहीं मिलेगी। सेकेंड क्या है, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स ही होती है डायरेक्टरीज में, तो यहाँ पे क्यों, जो आपको रिजल्ट, आप यहाँ इसमें कोई भी चीज सर्च करते हो तो आपको एक लिमिटेड पेजेस ही ओपन होते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, लेस रिजल्ट्स मींस फाइंडिंग व्हाट द यूजर नीड क्विकर। हमको कई बार हम जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च कर रहे हैं वो हमको जल्दी मिल जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है आपके? अनफैमिलियर डिजाइन एंड फॉर्मेट। हर डायरेक्टरी की अपनी एक डिजाइन होती है, अपना एक फॉर्मेट होता है, तो दैट इज अनफैमिलियर। डिले इन द क्रिएशन ऑफ वेबसाइट एंड इट्स इंक्लूजन इन द डायरेक्टरी। डिले होता है क्योंकि जो वेबसाइट ओनर है वो आपका वेबसाइट को सबमिट करेगा, फिर आपका एडिटोरियल स्टाफ उसको अप्रूव करेगा, तब वो साइट जो है वो डायरेक्टरी में जाके ऐड होती है। तो वो जो बीच का जो गैप आता है उसको बोलते हैं डिले। इट डज नॉट फॉलो द रियल टाइम रनिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो क्या है, मिक्स है आपका crawler plus human powered directory. Hybrid search engine uses both the crawler based and manual indexing for listing the site in the search result. वो दोनों चीजें यूज कर रहा है। More and more search engine these days are moving to the hybrid based model. Most of the crawler based search engine like Google basically uses crawler as a primary mechanism and human powered directories as a secondary mechanism. Okay, Google जो है it is also a hybrid type. वो क्या करता है, प्राइमरी मैकेनिज्म उसका crawler based सर्च इंजन, यानी कि कोई भी जो साइट है, अपडेटेड साइट है, न्यू साइट है, वो गूगल में जाके ऐड होती है बाय यूजिंग द ऑटोमेटेड प्रोग्राम कॉल्ड एज crawler, but it required the manual filtering. Okay, they required a human power for the removal of copied and spammy site. Okay, अगर कोई साइट आपकी कॉपी हो गई है, डुप्लीकेट हो गई है या फिर स्पामी हो गई है, in that case they required manual filtering. Okay, यहाँ पर वो क्या यूज करेगा, ह्यूमन पावर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, गूगल को इट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड सर्च इंजन। तो most of the crawler based search engine like Google basically uses crawler as a primary mechanism and human powered directories as a secondary mechanism. For example, there is a manual filtering of search results happen to remove the copied and spammy sites. When the site is identified for the spammy activity, the website owner needs to take corrective action and resubmit the site to the search engine. The expert do manual review of the submitted site before including it again in the search result. है, अगर कोई आपकी वेबसाइट कॉपी हो गई, डुप्लीकेट हो गई है या फिर आपका स्पामी हो गई है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो साइट ओनर है वो क्या करते हैं, अपनी साइट को गूगल से सर्च इंजन से रिमूव करता है और फिर उसको करेक्ट करके रीसबमिट करता है। जब रीसबमिट होता है, देन इन दैट केस द एक्सपर्ट रिव्यू दैट साइट एंड बिफोर एडिंग इट टू द सर्च रिजल्ट्स, को रिव्यू करता है, उसके बाद वो ऐड होती है। ठीक है, तो द हाइब्रिड सर्च इंजन इज अ मिक्स ऑफ क्रॉलर एंड मैनुअल directory. Okay, the example of hybrid search engine are Yahoo and Google. And the last one is the meta search engine. The meta search engine do not own a database of web pages. They send your search term to the database maintained by the search engine companies. जो मेटा सर्च इंजन होता है उनका खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता। वो क्या करते हैं, जब आप कोई भी क्वेरी आप मेटा सर्च इंजन में डालते हो, तो सी इन द डायग्राम, आपने कोई भी क्वेरी अगर मेटा सर्च इंजन में डालते हो तो ये मेटा सर्च इंजन क्या करते हैं, उस क्वेरी को इमीडिएटली दूसरे सर्च इंजन में डाल देता है जिनकी अपनी रिसोर्सेज है, अपना डेटाबेस है। फिर वहां से जो भी रिजल्ट्स उनको मिलते हैं उसको वो ऐड करके एज अ रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, द मेटा सर्च इंजन टेक द रिजल्ट फ्रॉम द
other search engine and combine them into a one large listing. ठीक है, इन सब दूसरे सर्च इंजन के रिजल्ट को वो कंबाइन करता है और एज अ रिस्पॉन्स को दिखाता है. ठीक है, इन द मेटा सर्च इंजन व्हेन यू सबमिट कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स, यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज डालते हो, कोई भी टेक्स्ट डालते हो, the search engine will transmit your search query simultaneously to the several individual search engine. Within a few seconds, you will get back from all the search engine query. आपको कुछ ही देर में सारों का results मिल जाएगा. The meta search engine then combine the result from all the other search engine result into a one large listing. Okay, तो आपको एक चीज जो ध्यान रखना है, मेटा सर्च इंजन में they does not have their own database of web pages, उनका खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता. While the user get more result with a meta search engine, the relevancy and the quality of the result may suffer sometimes. उनको मेटा सर्च इंजन में रिजल्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी चीज आप सर्च करोगे तो जो सर्च रिजल्ट पेज होता है वो बहुत सारा रहता है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी और रेलिवेंसी जो है वो सफर करती है. वाई? क्योंकि जो मेटा सर्च इंजन है वो कौन से डेटाबेस से रिजल्ट लेकर आ रहा है वी डोंट नो, है ना. आपने कई बार क्या होता है, जो सर्च इंजन रहते हैं वो स्मॉल सर्च इंजन या फिर फ्री सर्च इंजन या मिसलेनियस डायरेक्टरीज से भी कई बार रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसको मेटा सर्च इंजन ऐड करके आपको एज अ रिस्पॉन्स दे देगा. So in the meta search engine, sometimes the quality and the relevancy of the results suffer. The example of meta search engine include are Metacrawler and Dogpile. These are the example of meta search engine. Okay. So what are the four types of search engine? We have the crawler based search engine, which uses the automated software program to survey and categorize the web pages. In the directory are the human powered search engine, where the website is submitted to the directory and approved by the editorial staff. The hybrid is a mix of crawler and directories. In the meta search engine does not have their own database. They send the search term to the database maintained by the search engine companies. Okay, so these are the four types of search engine. इसके अलावा और भी स्पेशल टाइप ऑफ सर्च इंजन होते हैं. स्पेशलिटी सर्च इंजन बोलते हैं जिसको अपना, जैसे कि शॉपिंग के लिए होता है याहू शॉपिंग, अमेजोन, बिग्स रेट. दिस आर द सर्च इंजन फॉर शॉपिंग, है ना. अपन अमेजोन वगैरह में आप लोग शॉपिंग करते हो, वहां पर भी ऊपर आपको सर्च बॉक्स मिलता है, वहां पर आप टाइप करके जो भी आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करना है आप वहां पे निकाल लेते हो. देन आपका गूगल न्यूज पेज is also a type of search engine that searches news from the different newspaper, है ना. वहां पर आप अलग अलग न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो. देन शेयरवेयर मार्केट होता है, शेयरवेयर सर्च इंजन होता है जहाँ पे आप शेयर मार्केट का के बारे में आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो. तो देयर आर वेरियस स्पेशलिटी सर्च इंजन्स आर आल्सो देयर, विच जिसका एक अपने पर्टिकुलर यूज के लिए अपन सर्च करते हैं. And the next one is the Wikipedia. जैसे मैंने आपको बताया, Wikipedia is nothing but the online encyclopedia where several articles are present and it is open source. Okay, Wikipedia is an online free content encyclopedia project helping to create a world in which everyone can freely share in the sum of all knowledge. It is supported by Wikimedia Foundation and based on the model of freely editable content. The name Wikipedia is a blending of a word wiki, which means a technology for creating collaborative websites, from the Hawaiian word wiki, meaning quick. And pedia कहाँ से आया है आपका? Encyclopedia से. The Wikipedia's article provide link designed to guide the user to the related page with an additional information. कोई भी अगर आप Wikipedia का आर्टिकल खोलोगे तो आपको वहाँ पे लिंक्स मिलते हैं, इसके थ्रू क्या हो सकता है, आप वहाँ के रिलेटेड पेजेस में चले जाओगे टू गेट द एडिशनल information. The Wikipedia is written collaboratively by a large anonymous volunteer who write without pay. Anyone with internet access can write and make changes to Wikipedia article, except in the limited case where adding is restricted to prevent further destruction. Okay, Wikipedia में आप देखोगे एडिट का भी एक ऑप्शन होता है, वहां पर जाके आप उस आर्टिकल को एडिट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ आपको
चेंज करना है, अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट सम ऑफ द आर्टिकल कुछ में आपका एडिटिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है टू प्रिवेंट द फर्दर डिस्ट्रक्शन। ओके, सो दिस इज अबाउट विकीपीडिया। मैं आपको गूगल में करके दिखाती हूँ। सी, दिस इज द सर्च इंजन फॉर गूगल। आप यहाँ पे कोई भी चीज को सर्च करोगे, लाइक अमाइलेज अपन ने सर्च किया, ठीक है, अमाइलेज फ्रॉम एस्परजिलस एरस, ओके, मैंने सर्च किया तो ये आपका सर्च बॉक्स था। दिस इज द सर्च इंजन एंड दिस इज द सर्च रिजल्ट पेज। देखो कितने आर्टिकल्स आपके प्रेजेंट है यहाँ पे, 55,400 रिजल्ट्स है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स, आप यहाँ इमेज में भी जा सकते हो, न्यूज में, वीडियोस में भी जा सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो ऊपर ऊपर के आर्टिकल्स रहेंगे, देखो ये माइलेज बाय एस्परजिलस टेरेसियम, मतलब मोस्ट रिलीवेंट टू लिस्ट रिलीवेंट। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो आपको जो आर्टिकल है वो आपके सर्च टेक्स्ट से अलग मिलने लगेंगे, दूर मिलने लगेंगे, ठीक है। ये भी आपका अमाइलेज फ्रॉम एस्परजिलस टेरेसी है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर भी देखो आपका अमाइलेज फ्रॉम एस्परजिलस टेरेस, अमाइलेज फ्रॉम एस्परजिलस, अब देखो टेरेस नहीं है, टेरेस के ऊपर इतने ही थे, अब यहाँ आपका बदल गया, आपका फंगस का नाम आपका बदल गया, ठीक है, टैमेरी हो गया। देन सी, अब यहाँ पर आपका कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ अमाइलेज, ये भी आपका टेरेस है। ये आपका रिलेटेड सर्च आर्टिकल, आपका अमाइलेज एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस इज यूज्ड टू फंगल अमाइलेज। देखो अब यहाँ पे अमाइलेज है लेकिन एस्परजिलस नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर आप आगे जाते जाओगे तो आपका जो आर्टिकल है वो आपका लिस्ट रिलीविएंट होता जाएगा। देखो यहाँ पर फिर आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हो गया, तो आपको दूसरे आर्टिकल्स यहाँ पे मिलने लगेंगे। देखो इमेजेस आ गए यहाँ पर, तो डिफरेंट लिंक्स अपने को मिलते हैं जब अपन सर्च करते हैं, वीडियोस भी मिलता है, रिसर्च आर्टिकल्स भी मिलता है, इमेजेस भी मिलती है, तो डिफरेंट टाइप की आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। ये आपका गूगल हो गया। वैसे सेम अपन याहू खोलोगे तो ये आपका, देखो ये याहू का सर्च इंजन हो गया, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे ये आपका अमाइलेज एस्परजिलस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका इस इतने ज्यादा रिजल्ट आपने जब एक मिनट टेरेस ही करती हूँ मैं, तो यहाँ पे आपके जो सर्च रिजल्ट है वो कितने ज्यादा, इन द गूगल अपने को 55,000 मिले थे शायद, यहाँ पे 2 लाख से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट सर्च इंजन में आपको जो सर्च रिजल्ट पेज है वो आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको यहीं पे इमेजेस दिख गई, आपका इमेज आ गया, ये आपका रिसर्च आर्टिकल आ गया। वीडियोस देखोगे, वीडियोस में जाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग एस्परजिलस एंड अमाइलेज, ओके। न्यूज में जाओगे तो रिसेंट कौन कौन से आपके आर्टिकल्स उस पे आए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है लेकिन न्यूज में अपने को जनरली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन से रिसेंट अभी क्या फाइंडिंग हुई है वो अपने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका याहू का सर्च इंजन हो गया। सबका सर्च इंजन जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अपने को दिखता है, ठीक है। एक मैंने आपको क्या बताया था, आस्क करके था, ask.com, ठीक है। इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ सर्च इंजन, ठीक है, ask.com। यहाँ पर भी जैसे आप माइलेज को सर्च कर सकते हो, माइलेज सेम चीज को इसलिए सर्च करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट सर्च इंजन में आपको डिफरेंट सर्च रिजल्ट पेज मिल रहे हैं, नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट पेज जो है वो अलग हो जाता है।
देखो यहाँ पे सिर्फ 24,000 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आपका ये छोटा सर्च इंजन है, तो यहाँ पे आपको रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग सर्च इंजन है वो आपको डिफरेंट सर्च रिजल्ट पेज आपको देता है, डिपेंडिंग अपॉन द एल्गोरिदम बिहाइंड दैट सर्च इंजन, ओके। देन और अपन ने क्या देखा था, डॉक्टाइल ना, this is also a type of, it is a meta search engine, ठीक है। डॉक्टाइल is a type of meta search engine. Miles. Yes, killers. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसका कैसे शो है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपको वेब सर्च करना है, इमेज सर्च करना है, वीडियो देखना है, न्यूज देखना है, ठीक है। ये आपका रिसर्च पेज है, सर्च रिजल्ट पेज हो गया ना। इमेज आपको देखना है तो आप इमेज में जाओगे तो वो इमेज शो करेगा, ठीक है। वीडियोस में जाओगे तो आपको वीडियो शो करेगा। रिसेंट सर्च भी यहाँ पे वो हिस्ट्री भी दिखा रहा है कि आपने रिसेंटली आपने क्या क्या सर्च किया, आपको आप यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हो। न्यूज में जाओगे तो रिसेंट इसमें क्या क्या, देखो ये आपके कौन कौन से पेपर्स अभी आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो सारी चीजें यहाँ पे फाइंडिंग्स जो है वो अपन न्यूज में जाके देख सकते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, विकीपीडिया। विकीपीडिया, ओके, विकीपीडिया हमारी, तो आप कोई भी चीज सर्च करोगे आपको उसका विकीपीडिया मिल ही जाता है। तो विकीपीडिया जैसे मैंने ओपन किया, तो जैसा मैंने बताया कि विकीपीडिया में लिंक्स होते हैं बाय विच यू कैन मूव टू द रिलेटेड आर्टिकल, आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई। जैसे यहाँ पे एंजाइम, जो भी ब्लू कलर होता है ना, वो ब्लू कलर लिंक होता है। जैसे इसको मैं अगर क्लिक करूंगी तो मैं एंजाइम में चले जाऊंगी, एंजाइम के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज एंजाइम ना, कैटलिस्ट के बारे में आप जा सकते हो। दिस आर द लिंक्स, जो ब्लू कलर के होते हैं वो लिंक होते हैं, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आप उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक के आर्टिकल के अंदर चले जाते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एडिट का ऑप्शन है, अगर आप इसको टिक करोगे तो आप एडिट कर सकते हो इस पेज को, आपको जो भी चेंज करना है, देखो ये ऐसे करके आप इसको डिलीट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो इट इज एडिटेबल। फिर व्यू हिस्ट्री, व्यू हिस्ट्री में क्या क्या एडिट हुआ है अभी तक, क्या कैसे कैसे ये पेज रिवाइज हुआ है, आपको उसकी रिवीजन हिस्ट्री यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो विकीपीडिया जो है एक प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया, फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं और उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, ओके। So this is all about today's lecture.